Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope you are all well. Welcome to class 10th. I am Zahida Khalid, your chemistry teacher. I am sure you all are very well aware of the situation which is going on nowadays. So in this critical situation, FES administration has arranged Zoom classes. I think it is good decision and it will be very useful for you people. In chemistry class आपको मैं लाइव लेक्चर डिलीवर करूंगी. इसके बाद व्हाट्सएप पर आपको सारे नोट्स शेयर हो जाएंगे, ठीक है. और नीट नोटबुक में आप नोट्स मेंटेन करेंगे और साथ साथ नीट नोटबुक्स पे होमवर्क भी करेंगे, ठीक है. बेटा जैसे आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने बगैर एग्जाम लिए आप लोगों को क्लास 10th में प्रमोट कर दिया है. कुछ लोगों को ये फैसला अच्छा लगा, कुछ को नहीं अच्छा लगा, यानी मिले जुले तासुरात हैं लोगों के. बट एक चीज तो क्लियर है कि आपका सारा रिजल्ट, योर ऑल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द स्टडी ऑफ क्लास 10. कि आपकी क्लास 10th में स्टडीज कैसी. So it means you have to work very hard in class 10, right? So in class 10th हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है but we have less time. आपको पता है 9th क्लास में जो आपके 8 चैप्टर थे, हाफ चैप्टर आपने 8th क्लास में कवर किए, हाफ आपने 9th में कवर किए, और इस तरह करते करते भी आपको काफी मुश्किल लग रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 8 ही है बट यू हैव टू कवर इन क्लास 10. सो इस क्लास में हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, अपनी पेस थोड़ी तेज रखें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है. सो क्लास 10th की बुक में 8 चैप्टर हैं. स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 9 टिल चैप्टर 16, राइट. इन 9 चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक हैं. हमारे पास टोटल 8 चैप्टर हैं. तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर 9. चैप्टर 9 इज द first chapter. So first chapter, the name of chapter is chemical equilibrium. Now I'm sharing the screen. Just wait. I hope screen तो सबको share हो रही हो, ठीक है. Chapter 9, chemical equilibrium. Now complete reaction. What is reaction? Reaction क्या चीज? Reaction in which something or some substance react to form new product or new substances. So how we define it? A complete reaction is that reaction in which all reactants are converted into products. यानी सारे रिएक्टेंट जो हैं वो completely कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में, यानी नया सब्सटेंस बना. Look at this reaction. Zinc plus copper sulfate, these are the reactant which react. Then product is zinc sulfate plus copper. There is an arrow between these two, that is the indication of reaction, which is indication of the direction of reaction. So in this reaction, the substances which react are called reactant. ठीक है, इसमें कौन से हैं? जिंक, कॉपर सल्फेट, these are the reactants. वो substance जो react हो रहे होते हैं, these substances are called reactants. या वो substance जो combine हो रहे हैं,
These are called reactant, and they are always written on the left side of arrow. Arrow बना हुआ है ना सेंटर में, तो लेफ्ट साइड को जो चीज होगी भी वो आपके रिएक्टेंट्स हों, राइट? सो प्रोडक्ट्स कौन से हैं? द प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस विच आर फॉर्म और न्यू सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास है जिंक सल्फेट और कॉपर. दीज आर द products. So products are always written on the right side of the arrow. So how we define reactants and product? Reactants in a chemical reaction, the substances which combine are called reactants. So in the above reaction, zinc and copper sulfates are the reactants. Now, how do we define product? How we define product? So in a chemical reaction, the new substances formed are called products. So above reaction में कौन कौन से product है? Zinc sulfate plus copper. These are the products. ठीक हो गया? यानी ऊपर वाला रिएक्शन में आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें zinc plus copper sulfate, these two are reactant because they are reacting, they are combining, and they are written on the left side of arrow. A new substance form are zinc sulfate and copper. They are called product because they are the new substance which are formed after reacting, and they are written on right side of the arrow. That's why we call them products. अब ये डेफिनेशन, इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए, आगे ये टर्म्स यूज हो. तो आप जब मैं रिएक्टेंट बोलूं आपको फौरन माइंड में आ जाए कि रिएक्टेंट क्या है, जब मैं प्रोडक्ट बोलूं तो आपको फौरन माइंड में आ जाए कि प्रोडक्ट क्या है और कंप्लीट रिएक्शन. ठीक है? सो ये डेफिनेशन इसलिए शुरू में मैंने आपको बताई. नेक्स्ट आ जाए इरिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये होगा कि विच आर कंप्लीट रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीट, कि जिसमें आपके सिर्फ रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंबाइन करके वापस रिएक्टेंट नहीं बना रहे. ओनली रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट. और इनरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो. ये एरो एक ही एरो होगा, एक ही डायरेक्शन में सब करते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं. ठीक है? दैट रिएक्शन इज दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है? सो ऑल इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंप्लीट रिएक्शन. ये हमेशा कंप्लीट होती है, यानी सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में, पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड irreversible. Now, how do we define irreversible reaction? Most of the reaction in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions. Okay? They are represented by single arrow. ठीक है? ये देखिए आपके पास वही सेम रिएक्शन मैंने लिखा है, Zn प्लस कॉपर सल्फेट, ये सिंगल एरो इसके दरमियान में है. उसके बाद आ गया प्रोडक्ट जिंक सल्फेट और कॉपर. तो ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन होगा, सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे और ये रिप्रेजेंट होगा एक सिंगल एरो से. इसमें ये जो प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट और कॉपर, दे आर नॉट रिकम्बाइंड टू फॉर्म द रिएक्टेंट, यानी ये दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बना रहे, प्रोडक्ट बन गया बस खत्म. So these are called irreversible reaction. It consists of single reaction that is in one direction, forward direction. ठीक है? Now come to reversible reaction. In reversible reaction, products can recombine to form reactants. In reversible reaction में क्या होता है? Products can recombine to form reactants. ये जो products हैं कॉपर सल्फेट और जिंक, अगर यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट होगा तो वो प्रीकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स आपको. ठीक है? So these types of reactions are called reversible reaction, and these
reactions never go for completion. कभी भी complete नहीं होते reaction, ठीक है? And it has two types of reaction, forward or reaction. It is represented, these type of reactions are represented by double arrow. यहाँ पर single arrow है, इसका मतलब है reversible reaction में double arrow होगा, double arrow से represent. So how we define these reactions? Reversible reactions are those reactions in which products can recombine to form reactants are called reversible reactions. These reactions never go for completion. यानी आपको लगता तो है कि ये स्टॉप हो गए, लेकिन स्टॉप नहीं होते. They are represented by double arrow between reactants and product. डबल एरो इसके दरमियान. इरिवर्सिबल में सिंगल एरो होता है, रिवर्सिबल में डबल एरो between reactants and products. So these reaction proceed in both direction. Irreversible reaction single direction में, reversible reaction both direction, forward and reverse. So it means reversible reaction consists of two reactions, forward reaction and reverse reaction. Now look at this reaction. Hydrogen plus iodine. It will give you product 2HI. Hydrogen iodide. Now there are two or double arrow between reactants and product. Look at this, these arrows. ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप एरो देखते हैं रिएक्शन के दरमियान तो आपको फौरन क्लिक कर जाता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल. अगर तो सिंगल एरो होगा तो दैट मींस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, और अगर डबल एरो है तो दैट मींस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. So it consists of two reactions. First reaction is forward reaction. Look at this reaction. Hydrogen plus iodine, it will give you HI. एक arrow है इसके साथ. So ये forward reaction. Now reverse reaction, when your compound that is product 2HI, it is decomposed into hydrogen and iodine. ठीक है, ये reaction बहुत easily आप observe कर सकते हैं, because hydrogen, when you want to observe forward reaction, take hydrogen vapors and iodine vapors in a closed container. ठीक है, क्लोज कंटेनर में आपने हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर्स किए. हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस एंड आयोडीन इज पर्पल कलर. ठीक है, व्हेन यू रिएक्ट or when you combine these two gases, so it is converted into 2HI. That means your color of iodine is disappear. पर्पल कलर जो आयोडीन का है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाता है. इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन और आयोडीन मिक्स होके हाइड्रोजन आयोडाइड बना चुके हैं, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना चुके हैं विच इज कलरलेस. ठीक है, सो कलरलेस है. कलरलेस जब होगा तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो, वो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन नजर आ गया, यानी पर्पल कलर डिसअपियर. अब रिवर्स रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस है, इसको आप क्लोज कंटेनर में लेंगे. ठीक है, देन यू हीट इट. जब आप तो हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं, देन द कलर ऑफ आयोडीन अगेन रीअपियर. पर्पल कलर उसमें अपीयर होना शुरू. इसका मतलब है कि आपका ये जो पर्पल कलर है वो अपीयर हो गया है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड इट इज चेंज इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन. क्लियर हो गया? सो दिस इज रिवर्स रिएक्शन. होता क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, और उसके साथ साथ फिर आपका साथ इसके रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं. अब इसका मतलब है साइड बाय साइड फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन अकर, और वी कैन से फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली. क्लियर? साइमल्टेनियसली मीन साथ साथ. ठीक है, नाउ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें क्या हो गया, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसका मतलब है कि जब दोनों का रेट उतने ही टाइम में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, उतने ही टाइम में प्रोडक्ट
डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, इसका मतलब है साथ साथ चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, और उस वक्त आपको लगता है कि जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो गया। आपको देखने में इट सीम्स टू बी स्टॉप, देखने में लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्टॉप। स्टॉप नहीं हो रहा, रिएक्शन इज कंटिन्यूसली अकरिंग, बट डिफरेंस क्या है? the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction, and that state is called chemical equilibrium state. Okay, so how we define chemical equilibrium? It is a state of chemical reaction in which forward reaction and reverse reaction takes place simultaneously. Okay, takes place at the same rate but in opposite direction. But in opposite direction. So you can say it is called dynamic equilibrium. Dynamic means reactions do not stop when they come to equilibrium state. जब आप डायनेमिक का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ. That's why we call it dynamic equilibrium. So in this case, rate of forward reaction is equal to का साइन डालें rate of reverse, यानी जिस टाइम से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट के साथ, उसी टाइम पीरियड के साथ रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, मींस के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तभी तो रेट होगा ना इक्वल, क्योंकि जितनी आपकी कंसंट्रेशन, जितनी आपको अमाउंट होगी रिएक्टेंट की, उतनी ही प्रोडक्ट की है. जितनी ही अमाउंट के साथ आपको रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तेजी से, उसी तेजी के साथ, उसी फास्टनेस के साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है रिएक्टेंट में. So that's why we said the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Clear? Now the question arises how dynamic equilibrium can establish. कैसे establish हो? ठीक है? Okay. Now we take the next example. For example, SO2 और O2 की हम example यहाँ पर लेते हैं. Molecules of O2 and SO2 react to give SO3. ये रिएक्शन है. SO2 react with O2, product is SO3. ठीक है. अब ये इक्वेशन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन की होती है, इट मस्ट बी बैलेंस इक्वेशन. अब आपने रिएक्शन देखा SO2 plus O2 2S, इसमें आपके पास SO3 प्रोडक्ट है, SO2 और O2 रिएक्टेंट है. तो दरमियान में जो एरोज हैं ये डबल हैं या सिंगल. ठीक है. सो डबल एरो मींस रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन. सिंगल एरो नहीं है, डबल एरो. ठीक है. रिएक्शन इज रिवर्सिबल. तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दैट मीन इट कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस. ठीक है. कौन कौन से टू रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन. तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? SO2 plus O2, it will give you SO3, single arrow. So it means this is forward reaction. Direction is single. ठीक है. So इसको आप कहेंगे forward. Now next reaction is SO3. ये आपका प्रोडक्ट है SO3. तो अब ये डिकम्पोज हो रहा है SO2 और SO2. SO3 it will give you, when it decompose it will give you SO2 and O2. So this is the reverse reaction. So in this case SO3 is reactant and this is the. ठीक है. अब क्या होगा? इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट होगा या नहीं? प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ. ठीक है. जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो तब प्रोडक्ट बनेगा. जब प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, SO3 नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका रिवर्स रिएक्शन भी नहीं है. रिवर्स रिएक्शन जो है वो जीरो है, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा तो वो डिकम्पोज होगा ना.
सही है। प्रोडक्ट जब तक नहीं बनता तब तक रिवर्स रिएक्शन जो है उसका रेट जो है वो जीरो है। सो इनिशियली क्या बात है आपके पास कि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये है आपके पास रिएक्टेंट, इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा, कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई द फॉरवर्ड रिएक्शन, योर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाईएस्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों हाईएस्ट होगा? Because the concentration of reactant, that is SO2 and O2, is high. So that's why the rate of forward reaction is highest. So as the reaction proceeds, the concentration of reactant is gradually decreased and the rate of forward reaction is also decreased. क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि कंसंट्रेशन उसकी अमाउंट पे है वो कंज्यूम हो रही है। आप इसकी रिएक्टेंट की अमाउंट कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है। जब उसकी रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो रही है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन की रेट भी जो है उसका कम हो रहा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन of forward reaction is decreased because the concentration of reactant is decreased. तो फिर क्या होगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट उसका डिक्रीज हो गया, now what will happen? The concentration of reactant is also decreased. Now the amount of product, the amount of product, the amount of product is increased. Amount of product is increased. जैसे ही थोड़ी सी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है तो फौरन ही वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है रिएक्टेंट SO2 रूप। सो द रिवर्स रिएक्शन स्टार्टेड। प्रोडक्ट की अमाउंट बन गई, अब वो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट SO3 है वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया आपके रिएक्टेंट्स में। तो इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट। जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम हुआ, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट। सो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? SO2 act as reactant, SO2 और O2 act as product. So as the concentration of SO3 becomes higher, the reverse reaction speed up. यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट SO3 की अमाउंट ज्यादा होगी तो रिवर्स रिएक्शन भी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। फाइनली क्या होगा कि rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, and this stage is called chemical equilibrium. अब आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया और इस स्टेज पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की है उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की है। जितने ही टाइम से तेजी से या आहिस्ती से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी ही तेजी से रिवर्स रिएक्शन, यानी दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो। ठीक है। एंड दिस stage is called equilibrium stage, and this is called dynamic equilibrium because in this equilibrium reaction is not stopped but the concentration of reactant and products become equal. So in this way the equilibrium, chemical equilibrium established. Clear? Now look at the graph. ग्राफ बनाएंगे हम concentration of reactants and time. Look at the reactant. Reactant हमारे पास कौन से हैं? SO2 and O2. अब इसकी कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन की लाइन ऊपर तक जा रही है। SO2 यहाँ पर है, हाई कंसंट्रेशन। O2 भी यहाँ पर है, हाई कंसंट्रेशन। तो जैसे ही टाइम गुजरता है, रिएक्ट होते हैं, इसकी लाइन नीचे आती जा रही है, नीचे आ रही है। तो इसका मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन कम, क्योंकि ये रिएक्ट हो रहे हैं, ये कंज्यूम हो रहे हैं। और एक टाइम पे आके यहाँ पर आके दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो। अब ये ना इंक्रीज हो रही है ना ये डिक्रीज। ठीक है, ये तो रिएक्टेंट्स की है। उसके बाद प्रोडक्ट पे आ जाए। प्रोडक्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जीरो है, कंसंट्रेशन इसकी जीरो है क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इसकी अमाउंट थोड़ी सी इंक्रीज हो, फिर इंक्रीज होते होते यहाँ पर आकर रुक जाती, फिर यहाँ से आगे इंक्रीज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की। सो इट मींस यहाँ पर कांस्टेंट हो गई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गए, और concentration of reactant product concentration of product are equal, concentration of reactant and products they are equal. Now this state is called chemical equilibrium or equilibrium condition. यहाँ पर स्टेज पे ना इक्विलिब्रियम उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज, दोनों की कांस्टेंट हो, ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम. इज इट क्लियर? Now come to there is a question, that is, आप फिजी ड्रिंक सब पीते हैं ना, तो अब जब आप फिजी ड्रिंक ओपन करते हैं तो आपके पास एकदम बबल्स आना शुरू होता है, ठीक है, बबल्स निकलना शुरू. आप ढक्कन उठाते हैं, बबल्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप फिर बबल्स निकलते हैं तो आप एकदम ढक्कन बंद करते हैं तो बबल्स आना बंद होता है, ठीक है. व्हाई इट इज, व्हाई बबल्स कम आउट व्हेन बॉटल ऑफ फिजी ड्रिंक्स ओपन? क्यों होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना ज्यादातर, ये इसमें जो आपके ड्रिंक्स होते हैं, तो इस ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दैट इज डिसॉल्व इन लिक्विड ड्रिंक अंडर प्रेशर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ फिजी ड्रिंक. यानी जब फिजी ड्रिंक बन रही होती है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर प्रेशर देके उसको लिक्विड ड्रिंक में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, अंडर प्रेशर लिक्विड ड्रिंक में डिसॉल्व कर, देन सील, फिर उसको सील कर देते हैं. इसका मतलब है कि लिक्विड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है प्रेशर के साथ, ठीक है. व्हेन वी रिमूव द लिड ऑफ द बॉटल, जब हम ढक्कन उसका खोलते हैं सडनली बबल्स निकलते हैं, फिर हम ढक्कन ऊपर वापस रखते थे, बबल्स जो है वो बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. सो दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन. आप रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, when it dissolve under the when it dissolve in liquid drink under pressure it becomes liquid carbon dioxide, carbon dioxide aqueous, it is reversible reaction. तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है इसका मतलब है कि गैस को आपने उसके अंदर डिसॉल्व किया है लिक्विड ड्रिंक, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, जब आपने उसके बबल्स जो है वो बंद हो जाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन. तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, रिवर्स रिएक्शन, ये इधर से इस साइड पे आ रिवर्स रिएक्शन. इसमें एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कन्वर्टेड इनटू गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. जब गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ दैट मींस बबल्स अराइज, आप बोलते हो तो एकदम बबल्स खुलना शुरू, सो दैट इज द रिवर्स रिएक्शन. सो रिवर्स रिएक्शन में ये बबल्स आते हैं. सो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, बबल्स बंद हो जाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन में जो है वो बबल्स निकलना शुरू. सो दिस इज व्हाई बबल्स कम आउट व्हेन बॉटल्स ऑफ फिजी ड्रिंक्स ओपन. क्लियर हो गया बेटा? अभी मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी, पहले मैं आपको होमवर्क बता दूं. होमवर्क आपका है सेल्फ असेसमेंट, है आपकी बुक में है सेल्फ असेसमेंट 9.1. 9.1 है आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज, ये आपने नोटबुक में करनी है, और नोट्स भी मैं आपको शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे लेक्चर खत्म होने के बाद. आप वो नोट्स भी नीट नोटबुक्स पे मेंटेन करेंगे, नोट्स भी, और साथ ये एक्सरसाइज, ठीक है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप हैंड रेज करेंगे सिर्फ, ठीक है, हैंड रेज करेंगे, वन बाय वन इसको कैटर करेंगे आपके क्वेश्चंस. तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको मैं वन बाय वन कैटर करूंगी, आप लोग हैंड रेज करें, और अब जो हैंड रेज करेगा मैं उसको नाम बोलूंगी, आप अपना सिर्फ बेटा हैंड रेज कीजिए जिसको क्वेश्चन पूछना है. नो क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? प्राइवेटली है. हाँ बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है, आई एम वेटिंग. माइक खोल लें अगर किसी को, हैंड रेज करें, यस जैनब.
माइक अपना वो माइक ओपन कर लें। ज़ैनब बेटा माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। जी बोले। नहीं, फिजी ड्रिंक्स थोड़ा दोबारा समझा दें एक दफा। जी बेटा मैं समझा दूंगा। ठीक है ठीक है। एंड हाथ नीचे कर लें, मैं आपको समझा रही हूँ दोबारा से। फिजी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स में बेटा आपको होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, नॉर्मली जो आपके ड्रिंक्स होते हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपको पता है, ठीक है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ड्रिंक ड्रिंक लिक्विड होता है उसमें जब डिसॉल्व करते हैं तो वो ऐसे डिसॉल्व नहीं होती, आप उसको अंडर प्रेशर डिसॉल्व करते हैं। तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ फिजी ड्रिंक यू हैव टू डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से डिसॉल्व करके उसको सील कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उसको आपने प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया होगा। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, CO2 एरो CO2 एक्वस। ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रिंक। ठीक है, फिर जब आप उसको ओपन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए वो एकदम बबल्स निकलते हैं, क्योंकि वो गैस निकल रही होती है एकदम। आप लोग कहते हैं ना बंद कर दो जल्दी से गैस ना बाहर निकल जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो उसकी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बबल्स निकल, वो दैट इज द रिवर्स रिएक्शन, जिसमें aqueous carbon dioxide है that is changed into carbon dioxide. So we can say that carbon dioxide gas into aqueous carbon dioxide consists of two reactions. Forward reaction is occurred during manufacture and reverse reaction occur when we open the lid. Clear? Now next, for Abbas, what is your question? Open the mic. Mic open कर ले बेटा। मैम For जी बेटा। मैम ये SO3 SO2 में कैसे डिकम्पोज होता है? SO2 कैसे डिकम्पोज होता है? इट इज डिकम्पोज इनटू SO2 and O2 जब आप हीट करते यस हैं। मैम। ठीक है, अच्छा मैम, हीट से तो सालिया मैम फिर रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। जी रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है बेटा। ओके ठीक है, ठीक नाउ है। नेक्स्ट सालिया। सालिया बेटा माइक ओपन करें बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वो मैम जो वालेकुम। आपने कंसंट्रेशन की बात बताई है कि प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है और रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है, वो बात मुझे समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर ले, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट्स में अब आप देखें जब वो है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें यही करेंगे ना कि रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है प्रोडक्ट तो आपके पास है नहीं, प्रोडक्ट तो नहीं बना हुआ ना, आपने जैसे दो रिएक्टेंट्स इकट्ठे किए, तो आपने जैसे ही रिकम्बाइन किया तो वो आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट जैसे ही बनता है उसमें इस ये टेंडेंसी है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में होते हैं उसमें प्रोडक्ट में वो टेंडेंसी होती है कि वो डिकम्पोज हो जाता है हीट करने से। तो जैसे ही आप उसको प्रोडक्ट बनता है तो वो फौरन वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है रिएक्टेंट्स में। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो लाजमी बात है कि उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, वो कंज्यूम हो रहे हैं ना SO2 O2। जब वो कंज्यूम हो रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, और उधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होती है थोड़ी सी भी होती है तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो साथ साथ ये प्रोसेस चल रहा है। जी मैम, रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज नहीं होती इसकी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है पहले। ठीक है, वो पहले तो इंक्रीज फॉरवर्ड में होती है, रिवर्स में डिक्रीज में होगी हो ना? गई। हाँ देखे ना, इंक्रीज होती है ना, साथ साथ इंक्रीज हो रही है, साथ साथ जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज भी होती जा रही है, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है, साथ साथ वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में आते जा रहे हैं, प्रोडक्ट जो है साथ साथ रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते जाते हैं। इस तरह फिर साथ साथ दोनों रिएक्शन चल रहे हैं, तो एक स्टेज आती है जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, प्रोडक्ट की भी और रिएक्टेंट की। तो वो जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। सालिया जी समझ आई? जी हाँ। जी आगे। ठीक है, जी नेक्स्ट कौन है? कौन है? अलीजा बसीर। ग्राफ समझ नहीं आया आपको? ओके बेटा, ग्राफ देखें आप।
ऊपर देखें आपने ग्राफ में कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान कि वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये आपने ग्राफ बनाया हुआ है। अब SO2 की एक लाइन है, अगर आप गौर से देखें। अलीजा मेरी आवाज आ रही है आपको? अपना माइक ऑन करें अलीजा। अलीजा, अलीजा बसीर अपना माइक ऑन करें, आपके क्वेश्चन का मैम आ आंसर रही है दे। आपकी आवाज? अच्छा ठीक है, चले। अब देखें इसमें 2 लाइंस हैं, आप अगर गौर से देखें, एक SO2 की है, एक O2 की है, नजर आ रही है ना? अब यस O2 मैम। SO2 की कंसंट्रेशन की ऊपर तक पहुंची हुई है लाइन की, इसका मतलब है SO2 और O2 की कंसंट्रेशन हाई है। कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो जब टाइम गुजरता है, जब ये रिएक्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लाइन नीचे आ रही है दोनों की। इसका मतलब है कि ये कंज्यूम होते जा रहे हैं और इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और एक लाइन पे आके ये दोनों कांस्टेंट हो, अब ना उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये रिएक्टेंट दिखाए। उसके बाद आप प्रोडक्ट पे देख लें SO3, इसकी लाइन देखें कहां से, कॉर्नर पे है, टाइम और कंसंट्रेशन जहां पे ज्वाइन दोनों लाइनें कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन शुरू में 0 है, जैसे रिएक्शन होता है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, लाइन ऊपर को जा रही है, ऊपर को जाते 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 एंड पे आके स्टॉप हो गई, ठीक है। जब स्टॉप होगी इसका मतलब है ना वो अब इंक्रीज करेगी ना वो डिक्रीज करेगी SO3 की। तो इस स्टेज पे आके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई। तो इसका मतलब है जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्लियर? यस। ठीक है। नाउ हारिस, बेटा माइक ऑन करें, चलें क्वेश्चन मैम। पूछें हारिस। जी बेटा बोले। हारिस, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा एनी क्वेश्चन? यस मैम। मैम ये एक्सरसाइज 9 सेल्फ असेसमेंट 9.1 में मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखा है, तो इससे क्या मुराद है? 9.1 में आई थिंक वो है, क्या उसे कहते हैं, इसकी रिएक्शंस लिखने हैं आपने। एक मिनट, लेट मी चेक। 9.1 में तो सिर्फ रिएक्शंस हैं और कुछ भी नहीं है। आपको 2 रिएक्शंस दिए में, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप मैंने अभी वैसे वो करवाया नहीं है आपको, इसको छोड़ दें। आप सिर्फ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखिए। 2 फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन माइक्रोस्कोपिक में आगे करवाऊंगी, फिर आपको लिखवा दूं, ठीक है। ठीक है हारिस। हसन बेटा क्वेश्चन पूछे हसन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो ग्राफ है इसमें अब ग्रेजुअली हम SO3 की जो है कंसंट्रेशन बढ़ रही है और SO2 और O2 की जो है डिक्रीज हो रही है। तो जब ये रिवर्स रिएक्शन पे वापस आएंगे तो SO3 वापस डिकम्पोज हो रहा होगा SO2 और O2 में, तो फिर इस तरह हाँ, ये ग्राफ तो SO3 का वो लाइन वापस नीचे नहीं जाएगी और उन दोनों की वापस नीचे नहीं, ऊपर? नहीं 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 नहीं, यही तो बात है। नीचे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि बेटा अगर वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो साथ साथ उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिएक्टेंट साथ साथ उसको प्रोडक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जिस रेट के साथ वो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उसी रेट के साथ अब SO3 भी SO2 और O2 बना रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। शुरू में तो होगी कि SO3 की कंसंट्रेशन 0 होगी, फिर आस्ते आस्ते थोड़ी सी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद तो ये फिर इस तरीके से इसको इक्वल आ जाएगी दोनों की कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू, अंडरस्टूड। क्लियर हो गया? और क्लास 10th बेटा मैं फी बिल आपको भेजूंगी, काइंडली इसको सबमिट करवा दीजिएगा टाइमली, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी क्लास को कोई कहे कि भाई आपकी क्लास के फी नहीं आई।
तो जैसे ही मैं आपको फीमेल भेजूंगी, आप लोग काइंडली उसी वक्त सबमिट करवा के और मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं उधर एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी पिक्चर्स वो जो है फीमेल की वो भिजवा सकूं। ठीक है, तो मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज कन्वे कर। क्लियर हो गया? अभी बेटा मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। ठीक है, टाइम हो गया। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।